Now children, with this question we have completed our exercise 1.5. Now for the last exercise of this chapter 1, the last topic is laws of exponents of real numbers, that we have already studied in class 8th also. Now children, as you all know that any of the exponential number we can write in the form a raised to the power n, where a is called base and n is called its exponent or its power. Exponent or power is the same thing. One thing I want to just tell you here. What is the basic difference between power and exponent? Now listen very carefully. So children, when base is positive, then its power is called power. But when base is negative, when its power is called exponent. That means the power of negative base is known as exponent. No doubt, exponent or power may be positive or negative, but when base is positive, then this exponent we call it power, and when base is negative, we call this power as exponent. Got it? Now, so what is the meaning of this a raised to the power n? A raised to the power n means we multiply a by itself up to n terms. Suppose we are having a square. That means we have to multiply a by itself 2 terms, taking 2 terms, not 2 times, 2 terms. Similarly, a raised to the power 5. That means 5 a's we have to multiply with each other. Now we are multiplying these by 4 times, not by 5 times, but we are taking 5 a's. Got it? Now, there are some rules of these laws of exponents. We have already studied. Still, we are revising here. So, first rule is rule of multiplication. So, rule of multiplication are of 2 types. First, when bases are same, exponents are different. And second one, when bases are different and exponent is same. So, see, when base is same, powers are different and multiply sign is in between, then base will remain same and power will be added. I repeat, in multiplication, if base are same, multiplication में अगर base same है तो powers add हो जाती हैं. Here it is the example. ये देखिए बेस दोनों का 17 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी एंड वी आर गेटिंग द आंसर. बट अगर पावर सेम हो और बेसेस अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर सेम रहती है. फॉर एग्जाम्पल 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाई -5 raised to the power 2. Here base is 3, power is 2. Here base is -5, exponent is 2. So when we are multiplying these two, क्योंकि पावर सेम है, so that's why बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी and it will be the answer. Got it? सिमिलरली डिवीजन के भी 2 रूल्स हैं. पहला रूल जब बेसिस सेम हो और नेक्स्ट रूल जिसमें पावर सेम हो. सो अगर बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट हैं तो डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाती हैं. और जबकि अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग हैं तो बेसिस डिवाइड हो जाते हैं. देखिए इसका एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 23 की पावर 10/23 raised to the power 7. दोनों में बेस सेम है, सो दैट्स वाई पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. हियर इट विल बी द आंसर. एंड सेकेंड पार्ट में देखिए कि बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो जो चीज़ सेम है वो सेम ही है. इधर भी सेम है लेकिन बेसिस जो है वो डिवाइड हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 raised to the power 3 डिवाइड बाई 3 raised to the power 3. दोनों में पावर सेम है, सो बेसिस विल बी डिवाइडेड. 15 डिवाइड बाई 3 होल raised to the power 3. 15 डिवाइड बाई 3 is 5, so it will become 5 raised to the power 3. So hope you understand. Similarly, next law was एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर की भी अगर पावर हो तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है. जैसे कि 2 raised to the power 5 और इस पूरे की भी पावर 3 है, सो इट विल बिकम 2 raised to the power 5 into 3, यानी 2 raised to the power 15. नेक्स्ट रूल, अगर कहीं रूट ए है, रूट ए मीन्स a raised to the power हाफ.
कई बार हम a रेज टू द पावर हाफ को ये भी लिख सकते हैं और रूट a हो तो हम इसको a रेज टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन. Similarly, if cube root of a is there, a is any real number, 2, 5, 7, any of the real number I can take. So cube root of a means a raised to the power 1 upon 3. Similarly, if nth root is there, so it will become a raised to the power 1 upon n. And if in the nth root sign, within this sign, a raised to the power m is there, then it will become a raised to the power m whole raised to the power 1 upon n, and then power will be multiplied, so it will become a raised to the power m upon n. नेक्स्ट रूल इज किसी की भी पावर 1 सेम नंबर रहता है, किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है. 1 की पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो 1 ही रहेगा. किसी की भी पावर अगर नेगेटिव है तो आप उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हो, तो वहां पर पावर पॉजिटिव हो जाती है. मीन्स a रेज टू द पावर माइनस n अगर है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू a रेज टू द पावर माइनस n अगर है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर n. सिमिलरली इफ a अपॉन b रेज टू द पावर माइनस n है, सो आप इसमें बेस का अगर रेसिप्रोकल लिख दो, b अपॉन a कर दो, तो ये पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. यानी a अपॉन b की पावर माइनस n इज इक्वल्स टू b अपॉन a की पावर n. नाउ चिल्ड्रन, in the exercise 1.6, very simplest exercise it is, we will just practice all these rules. So let us see. एक्सरसाइज 1.6 में पहला क्वेश्चन जिसके सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, आपको सॉल्व करना है. जैसे 64 की पावर 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू निकालनी है. सो इसकी एक बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ देखिए पावर में अपॉन में क्या है 2 है ना, तो हमें इस बेस को पावर 2 में ही लिखना है. अदरवाइज तो 64 हमारा 2 रेज टू दी पावर 6 भी होता है, लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे. 64 किसकी पावर 2 है? 64 is 8 raised to the power 2. So we will replace 64 by 8 square. So that जब पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सके और हमें आंसर मिल सके 8. डायरेक्ट आंसर. इसी तरह से सेकंड पार्ट में जैसे 32 की पावर 1 अपॉन 5 है, सो वी विल रिप्लेस 32 की 32 किसकी पावर 5 होता है? ऑब्वियसली 2 की पावर 5 होता है. सो दैट्स वाई वी विल रिप्लेस 32 बाय 2 रेज टू द पावर 5, ताकि जब पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो तो 5 से 5 कैंसिल होकर के हमें आंसर मिल सके 2. आप देख रहे हो ये मैंने बीच के स्टेप छोड़े हुए हैं, ये इसलिए कि आप इस एग्जाम्पल को फॉलो करके ये वाले दोनों पार्ट्स भी ट्राई कर सको. गॉट इट? ठीक इसी तरह से यही रूल हमारा प्रैक्टिस हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में. एंड देन इन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रूल लग रहा है कि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई है, सो पावर विल बी एडेड. नेक्स्ट इज पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी. एंड इन द लास्ट पार्ट्स थर्ड पार्ट, सी बेसिस आर सेम, डिवाइड है, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट में देखिए पावर सेम है, बेसिस अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर सेम रहेगी. सो दैट्स इट चिल्ड्रन. यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है. अब आपने एक बहुत छोटा सा काम करना है कि ये आपकी बुक में एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके ये 5 पार्ट्स हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं. चाहे आपके पास बुक है चाहे आपके पास नहीं है, स्टिल यू विल प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स विदाउट सीइंग फ्रॉम द बुक. ओके, सो गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर.